Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, your response is very nice and most of the students they are giving me the nice response. Now students, I want to tell that we are doing the chapters metals and non-metals. Physical properties we have already done that what is the physical properties of metals like lustrous, density, their appearance, then sonorous sound, all these properties we have done. Now we are doing which topic we are doing students? We are doing the chemical properties. So we are doing the chemical properties. So students, in chemical properties, before writing the explaining the chemical properties, student, I will announce the name of the students whose answer was correct in my comment box in this last. Okay, not in the starting, before asking the next questions. So I will also give two questions in this videos also. But before asking the two questions, first I will give the response of the previous videos. So watch it carefully. Now in chemical properties, what we have seen students that what we have seen that chemical properties, first we have seen how metals react with oxygen. Now we have seen all the reactions. कुछ metals fastly ऑक्सीजन के साथ react करते हैं students और कुछ metals slowly ऑक्सीजन के साथ react करते हैं, but some they do not react also. Okay, so their reactivity of metals towards oxygen is different. Reactivity of metals towards oxygen is different. All metals, जितने भी metals है उनका rate of reaction बेटा same नहीं है, that is different. Some react with vigorously, some react with rapidly, some less rapidly react, and some do not. So on the basis of this reactivity, how they react with oxygen, how they will react with water, how metals react with oxygen, how metals react with water, and how metals react with acids. So all this one, after watching all this one, and how metals react with the solution of other metals. So basis of all this one, when we will study all these things, then we are able to understood the reactivity of the metals. So in the reactivity series, then only we are able to arrange the metals according to the reactivity series. केवल एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हम उनको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर सकते. देन अगर एक मेटल का सोडियम का रिएक्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ बेटा, देन वी विल सी अदर मेटल्स ऑल्सो. देन वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर ऑल्सो. बट वाटर में भी हमने देखा है कि सोडियम पोटेशियम तो विग्रसली रिएक्ट हो रहे हैं. मैग्नीशियम है बेटा, कैल्शियम है वो रिएक्ट तो करा है बट इट्स स्टार्ट फ्लोटिंग. सोडियम सबसे ज़्यादा पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ था वाटर के साथ, फिर सोडियम उससे थोड़ा सा कम. लेकिन कैल्शियम क्या है, सोडियम के बाद क्या कर सकते हैं हम कि कैल्शियम रिएक्ट हुआ था. कैसे बेटा कि कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर गया था बेटा, और रिएक्ट करने के बाद इट विल नॉट कैच फायर. वी हैव सीन इट विल नॉट कैच फायर, दिस मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग. बट this magnesium, what we have seen in magnesium, that magnesium when react with hot water only, and other aluminium, zinc, iron, all these metals they do not react with hot water and cold water, both cold and hot, उन दोनों से रिएक्ट नहीं कर रहा था. उन्होंने किससे रिएक्ट किया बेटा, विद द स्टीम के साथ रिएक्ट किया था. सो अब इन चारों को हम थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में व्हाट वी हैव सीन दैट हमारे पास पोटेशियम का हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हमें पता चल गया बेटा, मैग्नीशियम, बट एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरीके से, और साथ में मैग्नीशियम भी, इनको हम और कोशिश करेंगे बेटर वे में आइडेंटिफाई करने के लिए
कि वाटर के साथ तो हो गया, बट हाउ दे विल रिएक्ट विद द एसिड। बेटा वाटर के साथ अगर मैं आपको बताती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं लिखूँ, आई एम राइटिंग द रिएक्टिविटी सीरीज। एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक के बाद यहाँ से बाद नेक्स्ट कहाँ आएगा बेटा, जिंक, आयरन, lead, then hydrogen, then we will say copper, mercury, then you can say gold and this is gold and sorry silver and gold, platinum भी आप देख लेना। अब बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अबव जितने भी मेटल्स है, हाइड्रोजन से अबव वो क्या है, सपोज सोडियम है, सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट, वाटर से, तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा। ओके, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा क्योंकि सोडियम क्या है, वाटर से अबव है। हैव यू सीन, सो इससे अबव जितने भी है वो मोर रिएक्टिव हो गए, ये इससे बिलो वाले क्या हो गए, लेस रिएक्टिव हो गए। अब ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं, अब ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस हो गया। ओके, तो ये सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है यहाँ से, और क्या बना लेगा बेटा, सोडियम ऑक्साइड। आई होप इट इज़ क्लियर। बट अगर मैं यहाँ पे कॉपर को वाटर के साथ कराऊंगी तो ये रिएक्ट नहीं हो पाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हेयर, बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन, ये आयंस में जब ब्रेक होगा बेटा तो हाइड्रोजन हमें मालूम क्या है, हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव। कॉपर देखो लेड मोर रिएक्टिव है, लेड से लेस रिएक्टिव कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कौन सा हो गया, कॉपर। सो किस तरीके से ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो ऑल दीज आर अबव हाइड्रोजन, सो दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द दिस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द वाटर, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वाटर किस में ब्रेक होता है स्टूडेंट, वाटर एच आयन्स और ओ एच आयन में ब्रेक होगा। अब ये हाइड्रोजन आयन जो आया है वाटर का, कॉपर इसको डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज कॉपर यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे ही कॉपर इसको रिएक्ट करेगा, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, सो लेस रिएक्टिव को क्या है, अनरिएक्टिव, ये क्या है, लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर यू कैन से डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, सो ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, किसको, हाइड्रोजन आयन को। कॉपर स्टूडेंट लेस रिएक्टिव वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे, किसको, हाइड्रोजन आयंस डो नॉट गिव इलेक्ट्रॉन ईजिली, सो दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर सकते। हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन किसका है बेटा, वाटर का ही है ना हाइड्रोजन आयन, सो कॉपर कैनॉट, कॉपर इज़ अनरिएक्टिव, सो कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसको, किसको, जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बेटा, देन इट विल नॉट रिड्यूस इनटू हाइड्रोजन गैस, इट विल नॉट रिड्यूस इनटू व्हाट आई हैव डिस्कस यस्टरडे स्टूडेंट्स, वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इसको डिस्प्लेस करके, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या है, हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं, बट किस तरीके से करते हैं बेटा डिस्प्लेस, ठीक है, तो लिसन दिस केयरफुली। So what we have seen here, now I will show you there, so इस लाइन को आराम से इजीली तरीके से इसको देखो बेटा, अनरिएक्टिव मेटल्स, ये इकट्ठा ही बेटा, अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर डू नॉट give electron easily, so ये इलेक्ट्रॉन easily नहीं सकता, so what happen, so they are not able to reduce the hydrogen ion
हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। सो अगर वो रिएक्टिव मेटल्स है तो बेटा व्हाट हैपन, इट गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, सो they are able to reduce the hydrogen ion of water to hydrogen gas. But if they are unreactive metals like copper, so what they do not give electron. अगर वो less reactive है, unreactive है, so what will happen, वो क्योंकि वाटर किसके अंदर ब्रेक हो रहा है बेटा, वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयंस और OH आयन। अब ये एक आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अब एक और इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन गैस में वो रिलीज़ हो जाएगी वहाँ से और वो रिएक्ट कर जाएगा। सो मोर रिएक्टिव तो एक इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे हाइड्रोजन आयन को। और ईजीली क्या है बेटा, ईजीली अगर मोर रिएक्टिव होगा तो व्हाट विल दे डू, दे ईजिली गिव द इलेक्ट्रॉन, सो they able to reduce the hydrogen ion of water. वाटर का जो हाइड्रोजन आयन है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा किस में, हाइड्रोजन गैस में। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो ड्यू टू दिस व्हाट इज द फैक्ट हियर, मोर रिएक्टिव मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन्स easily, more reactive metals give electrons easily and these electrons reduce the hydrogen ion of water to hydrogen gas. So what we can say, the metals, what we can say students, the metals like copper, silver, gold, they are unreactive metal. So like you can say copper, silver, gold, प्लैटिनम, ये सब क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स अनरिएक्टिव है, सो दे कैन नॉट गिव। सो अगर एग्जाम में पूछ ले वाई कॉपर नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इट इज़ क्लियर ना। सो वाई कॉपर नॉट रिएक्ट विथ वाटर या सिल्वर नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सो द रीज़न इज हेयर कॉपर वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाता बिकॉज कॉपर कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू, किसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता बेटा, इलेक्ट्रॉन ईजिली। सो कॉपर कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन ईजिली, so that they are not able to reduce all the hydrogen ion, so they are not able to reduce the hydrogen ion of water to hydrogen gas. It is clear now. So this way, so water is slightly ionized, वाटर आयोनाइज्ड होकर किस में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन्स में। सो व्हेन ए रिएक्टिव मेटल कंबाइन विथ ए वाटर, जब एक रिएक्टिव मेटल कंबाइन होगा बेटा वाटर के साथ है, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन ए रिएक्टिव मेटल कंबाइन विथ water, so what will happen, it gives electron, वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देंगे टू रिड्यूस, द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन to hydrogen gas. So reactive metals when combine with water, reactive metals जब वाटर के साथ कंबाइन होते हैं बेटा तो इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली दे सकते हैं टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। सो कहीं पे भी अगर मेटल्स का कोई अगर आ जाए, एनी मेटल्स, कि वो एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता, सो हियर इज़ द सेम रीज़न। अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो व्हाट हैपन, लेस रिएक्टिव मेटल्स तो हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, सो इट विल नॉट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर एसिड के साथ पूछ ले कि कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट हो रहे, सेम। सो व्हाट यू विल राइट, लेस रिएक्टिव मेटल कैनॉट, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा,
कैनॉट कंबाइन विथ वाटर के साथ क्या लिख दो कि वाटर की जगह पे एसिड. सो लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव की नहीं बात करी मैं, किसकी बात करी बेटा? लेस रिएक्टिव मेटल्स डू नॉट कंबाइन. क्या आएगा? डू नॉट, यहाँ पे बस आ जाएगा डू नॉट कंबाइन विथ एसिड. डू नॉट कंबाइन विथ एसिड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स. टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर की जगह पे क्या लिखेंगे? एसिड. टू हाइड्रोजन गैस. बस सेम, अगर वाटर आ जाए तो यहाँ पे वाटर लिख दो, एसिड आ जाए तो एसिड लिख दो. ये आगे अगर कॉन्सेप्ट अभी एसिड वाला क्लियर नहीं हुआ तो जब एसिड वाला टॉपिक हम करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन दिस वन. ओके. मोस्टली मेटल्स तो एसिड के साथ हो ही रहे हैं, लेकिन जो अब नहीं हो रहा है ना उसका रीज़न यही है क्योंकि वो मोर रिएक्टिव तो इजीली हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, एसिड के अंदर हाइड्रोजन है ना, सो मोर रिएक्टिव कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड टू रिड्यूस हाइड्रोजन गैस. बस लेस रिएक्टिव मेटल्स डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन. लेस रिएक्टिव है तो कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन. अगर लेस रिएक्टिव है मेटल है सो कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयंस. हाइड्रोजन आयन किस में है? ऑफ एसिड टू रिड्यूस हाइड्रोजन गैस. इट इज़ क्लियर ना? नाउ लिसन. सो हमने अभी देखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी वी हैव सीन, देन वाटर के साथ भी हमने रिएक्टिविटी देख ली बेटा. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हाउ व्हाट हैपन व्हेन ए मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. सो हमने कुछ मेटल्स का तो देख लिया था बट सम मेटल्स स्टिल लेफ्ट. सो वी विल डू हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. सो व्हाट इज द रिएक्शन हियर? मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट दे विल प्रोड्यूस बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस they will produce. So we will take the example of some metals, like I will tell you sodium. Sodium when react with metal, sodium is a metal, sodium when react with a acid you will say hydrochloric acid. So क्या produce करेगा स्टूडेंट्स? सोडियम क्लोराइड. अब यहाँ पे देखो सोडियम मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन क्या है बेटा? ये लेस रिएक्टिव है. इन द रिएक्टिविटी सीरीज यू हैव सीन. नाउ this sodium metal will give electron to hydrogen ion present in the acid to reduce hydrogen gas. ये सोडियम हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा. फिर जो हाइड्रोजन आयन एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस में. ना अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा. देने के बाद ये हाइड्रोजन आयन एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस. और सोडियम क्या बना लेगा बेटा? क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड. अंडरस्टूड. अब इसको आप बैलेंस कर लो. यहाँ पे 2 लगेगा, हेयर ऑल्सो 2, हेयर ऑल्सो 2. अब ये देख लो बैलेंस हो गई. सेम यू कैन सी द अदर रिएक्शन ऑल्सो. ओके. सो वन मोर रिएक्शन आई विल राइट हेयर. यू कैन वॉच दैट वन ऑल्सो. So what we have seen here, next one that I will show you their reaction. Like मैग्नीशियम की ओर देखते हैं. मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ एसिड HCl एसिड व्हाट इट विल मेक बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ना इसको बैलेंस करो. मैग्नीशियम सेम है दोनों साइड, क्लोरीन के 2 है तो क्लोरीन के 2 लगा दिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ना यू कैन से एल्यूमिनियम. अब देखो बेटा एल्यूमिनियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट विल मेक? एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. क्लोरीन के देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है 3 है. यहाँ पे हम इसको एल्यूमिनियम के 2 कर देते हैं तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के 2 हो जाएंगे. अब क्लोरीन के कितने हो गए? 3 × 6 तो मैं यहाँ 6 ऐड कर देती हूँ क्लोरीन के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ इट इज़ बैलेंस्ड यू कैन सी. ये 2 3 × 6 6 में 2 3 × 6 मीन्स क्लोरीन के 6 हो गए, एल्यूमिनियम के 2. एल्यूमिनियम के मैंने 2 लगा दिए, क्लोरीन के 6 हो गए. अब हाइड्रोजन के 6 है. सो
हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के बेटा क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए इसका मतलब, क्योंकि हाइड्रोजन के 6 हो गए, क्लोरीन के भी 6। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के भी हमने ये, इसको बैलेंस हो गया इस तरीके से। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 थे, हाइड्रोजन के 2 थे, क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन के बेटा 2 हो गए, मैग्नीशियम बैलेंस्ड। नाउ यू विल सी नेक्स्ट, लेट आई विल सी वन मोर रिएक्शन। सो वी हैव सीन सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। नाउ जो अभी हमने रिएक्शन किया स्टूडेंट, एल्यूमिनियम, लिसन दिस एल्यूमिनियम रिएक्शन। सोडियम जो रिएक्शन थी, सोडियम ने जब एसिड के साथ रिएक्ट किया था तो सोडियम रिएक्ट वॉयलेंटली। ओके, सोडियम बेटा वॉयलेंटली बिल्कुल रिएक्ट कर गया था इजीली, मीन्स फास्टली। बट जब हमने मैग्नीशियम का देखा, देन इट विल ऑल्सो रिएक्ट, बट सोडियम से थोड़ा सा लेस रिएक्ट हुआ। और एल्यूमिनियम को देखो, नाउ एल्यूमिनियम व्हाट हैपन, रिएक्ट रैपिडली। कब? जब वो ये ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर से उतर जाएगी। एल्यूमिनियम एट फर्स्ट क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स स्लोली। जो अभी मैंने रिएक्शन कराई थी एल्यूमिनियम के एसिड के साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली। नाउ वाई दिस क्वेश्चन ये आ सकता है कि एल्यूमिनियम एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। नाउ यू विल एक्सप्लेन द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर हमेशा आ जाती है। सो एल्यूमिनियम फर्स्ट रिएक्ट स्लोली, किसके साथ बेटा, विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। बट व्हाट हैपन, बिकॉज वो स्लोली क्यों रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम, बिकॉज व्हाट हैपन, बिकॉज presence of aluminium oxide layer। सो ये स्लोली क्यों रिएक्ट किया है एल्यूमिनियम इस डाइल्यूट HCl के साथ, बिकॉज जो एल्यूमिनियम है ना बेटा, उसके ऊपर कौन सी लेयर आती है, ऑक्साइड लेयर। तो जैसे ही डाइल्यूट एसिड के अंदर हम इसको डालेंगे, डाइल्यूट HCl के अंदर, तो सबसे पहले ये ऑक्साइड लेयर, ये एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है, इट फर्स्ट डिज़ोल्व इन द एसिड। ये डिज़ोल्व होगी सबसे पहले, किसके अंदर डिज़ोल्व होगी बेटा, HCl, डाइल्यूट HCl के अंदर ये डिज़ोल्व होगी। जैसे ये लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर है वो अगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो नीचे क्या से बचेगा, एल्यूमिनियम, फ्रेश एल्यूमिनियम आ गया। ओके, प्योर बिल्कुल साफ़ सुथरा एल्यूमिनियम आ गया। अब नाउ इट रिएक्ट रैपिडली, ठीक है, नाउ अब ये रिएक्ट करेगी रैपिडली। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, वाई एल्यूमिनियम फर्स्ट रिएक्ट स्लोली बट आफ्टरवर्ड्स इट रिएक्ट रैपिडली। सो बिकॉज फर्स्ट इट रिएक्ट विथ स्लोली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर on the aluminium metal. When this oxide layer dissolve in HCl, then we will see a new fresh aluminium pieces obtained, and now this fresh aluminium react rapidly with HCl. अब ये फ्रेश एल्यूमिनियम एसिड के साथ रैपिडली रिएक्ट करेगा। सो सोडियम रैपिडली रिएक्ट कर रहा था, लेकिन एल्यूमिनियम फर्स्ट स्लोली, बट देन यू कैन से fastly. So reason is this one. So remember this reason beta. So now we will see the next one. After aluminium we will see zinc. Now this is zinc. Here I will write zinc metal. Okay, zinc जब acid के साथ react करता है, okay, so what it will be beta, zinc chloride प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये जिंक जो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में लेस रैपिडली देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से जो रिएक्शन करवाई थी हमने एसिड की, उसके कंपैरिजन में ये जिंक थोड़ा सा स्लाइटली लेस रैपिडली रिएक्ट कर रहा है, बट एल्यूमिनियम रैपिडली रिएक्ट कर गया, जिंक उसके कंपैरिजन में लेस रैपिडली रिएक्ट किया। नाउ यू विल सी, इसको बैलेंस कर लेना, या मैं करके दूँ ट्वाइस, यहाँ पे 2 क्लोरीन के हैं तो सीधा ट्वाइस लगा दिया हमने। जिंक 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया बेटा। नाउ यू विल सी आयरन ऑल्सो। आयरन को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी विल गेट आयरन क्लोराइड, ओके, देन हाइड्रोजन गैस। So you will see here this hydrogen 2 और chlorine 2. So this also react. But अब ये जो आयरन है, अगर आप एसिड के अंदर आप डाल के देखोगे बेटा, तो you will see एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में
जिंक थोड़ा सा लेस रैपिडली रिएक्ट किया था और जिंक के कंपैरिजन में आयरन थोड़ा सा और लेस रिएक्टिवली इसको रिएक्ट करेगा। ओके, तो सबसे लेस रिएक्ट मतलब इन तीनों में अगर हम देखें एल्यूमिनियम, ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक हो गया और जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम। नाउ वी विल से कॉपर। सो कॉपर को अगर हम मैं देखते हैं बेटा, सो कॉपर यू व्हाट यू विल से अबाउट कॉपर। सो कॉपर जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा, नो रिएक्शन। Now why it is no reaction student? Because copper cannot give electron. So copper cannot give electron to hydrogen ion present in acid, HCl acid, to reduce hydrogen gas. To reduce hydrogen gas. So that's why, so ये देगा नहीं. So copper cannot displace hydrogen because hydrogen is more reactive than copper. Hydrogen is more reactive than copper. So hydrogen cannot displace copper. Hydrogen copper को hydrogen can displace copper but copper cannot displace hydrogen क्योंकि copper less reactive है and hydrogen क्या है बेटा, in the reactivity series we have seen hydrogen is more reactive. In the reactivity series what we have seen, hydrogen is more reactive. So ये concept मैंने आपको starting में बता दिया था कि ये अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो आयन जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड है इट विल नॉट रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है अगर उसको इलेक्ट्रॉन ये नहीं देगा तो ये हाइड्रोजन आयन एसिड के अंदर जो प्रेजेंट है वो रिड्यूस हाइड्रोजन गैस में नहीं होगा। सो व्हाट यू विल राइट हियर, नो रिएक्शन। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, नाउ आई विल शो यू हियर स्टूडेंट्स, this one we will see. So you have take 4 test tubes, I will show you here. Now we will take 4 test tubes. Okay, A यहाँ पे 2 या 5 ले लो, ठीक है, 3 4 5। ओके, इन सभी के अंदर हम मेटल डाल देते हैं एसिड का। यही सेम रिएक्शन मैं आपको समझा रही हूँ बट एक और सिंपल तरीके में, एसिड के साथ किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट हुए हैं। नाउ दिस इज़ मैग्नीशियम, देन इन दिस टेस्ट ट्यूब आई हैव टेकन ए मेटल एल्यूमिनियम, इन दिस टेस्ट ट्यूब जिंक, हेयर आयरन और हेयर यू कैन से कॉपर। नाउ व्हाट वी विल सी स्टूडेंट्स, इन सभी के अंदर मैंने 10 ml इन ईच टेस्ट ट्यूब, दिस टेस्ट ट्यूब इज़ A, B, C, D एंड E। सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला है, मैग्नीशियम एटम, एल्यूमिनियम मेटल, जिंक, आयरन एंड कॉपर। नाउ व्हाट हैपन व्हेन आफ्टर हेयर आई विल कीप दिस मेटल एल्यूमिनियम, जिंक, ऑल दिस वन, देन आई विल ऐड 10 ml acid, 10 ml dilute you can say हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी के अंदर 10 ml क्या क्या स्टूडेंट, 10 ml किसकी डाली है मैंने, डाइल्यूट HCl। अब आप देखोगे इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा बबल फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देखोगे, जैसे ही इसके अंदर डालेगी तो बबल्स फॉर्मेशन क्या होगी, ये देखो यहाँ पे, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। जिसमें जितनी ज़्यादा बबल्स फॉर्मेशन होगी इसका मतलब वो मेटल उतना ही फास्ट उससे रिएक्ट हो रहा है। एंड इफ़ यू विल कीप इन दिस थर्मामीटर, अगर इसके अंदर आप थर्मामीटर डालोगे, सो व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स, जब इन 5 टेस्ट ट्यूब ABCD में मैंने मेटल्स डाल रखा है और उसके अंदर 10 व्हाट आई हैव एडेड 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन यू विल सी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल इज़ फास्ट, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। और आप यहाँ पे थर्मामीटर इसके अंदर डालोगे तो आपको वहाँ पे यू कैन सी द टेम्परेचर ऑल्सो कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, यू कैन सी। सो जिसमें फास्ट बबल फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। सो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव हेयर। मैग्नीशियम के बाद बेटा कौन सी होगी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव कौन सा हो गया, जिंक।
जिंक से लेस रिएक्टिव कौन सा हो गया, आयरन। बट यहाँ पे कॉपर में देखोगे नो बबल फॉर्मेशन। कॉपर अगर आपने एसिड के अंदर डाल के छोड़ रखा है बेटा HCl के अंदर, या HCl और इसके अंदर कॉपर है, देन नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्यों हो रहा है स्टूडेंट, बिकॉज कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं हाइड्रोजन आयन को, जो HCl हाइड्रोजन आयन्स में ब्रेक होगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो ये रिड्यूस कैसे होगा बेटा हाइड्रोजन गैस में। सो no reaction here. So in this way we have seen the reactivity of metals, but this copper, zinc, you have seen that they will not react with the gold, silver, copper, they will not react with, so what I told, they will not react with the acid. I hope it is clear. Now you will see student, so we have seen the reactions also. So we have seen the reactions. So मैग्नीशियम के साथ मैंने रिएक्शंस आपको दिखा दिए, एल्यूमिनियम, जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी सेम तरीके से ही हम किससे रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, सेम तरीके से ही हम मेटल के साथ, जैसे मेटल के HCl के साथ रिएक्ट किए थे, उसी सेम तरीके से हम मेटल्स के मेटल की जैसे हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट किए थे, उसी तरीके से बेटा H2SO4 के साथ भी हम रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, आप कोई भी रिएक्शन देख लो, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, सो लेट्स आई विल टेक एग्जांपल, जैसे हमने कहा सोडियम, सोडियम जैसे एसिड के साथ दिखाया था बेटा HCl के साथ, यू विल सी व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ H2SO4 then what it will form, sodium सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बेटा मैग्नीशियम भी क्या है, इस H2SO4 के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे ही जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट, सेम आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट, बट आयरन सल्फेट के साथ सेम, और इसी तरीके से कॉपर के साथ बेटा क्या आएगा, नो रिएक्शन। सो कॉपर क्या आएगा, नो रिएक्शन। We have seen this one. Now that sodium sulfate, magnesium sulfate बना देगा, aluminium sulfate और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दे। सो इसी तरीके से सारी ऐसे, बट स्टूडेंट HNO3, विच एसिड आई टोल्ड, HNO3, HNO एसिड के साथ, मतलब HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसी हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व when a metal react with nitric acid, जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। सो व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट हेयर, ओके इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज HNO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती तो ओनली राइट दिस वर्ड, HNO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। This is also the best explanation. If you forget all the concept, write only this one. HNO3 is a strong oxidizing agent. That's why when this metal react with HNO3, it will not release hydrogen gas. Hydrogen gas react करेगा but ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा जब मेटल HNO3 के साथ। What is the reason? Because HNO3 is a strong oxidizing agent. Now ये क्या करता है, it oxidize the hydrogen प्रोड्यूस्ड, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उसको क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व इन दिस वन। सो व्हाट हैपन, नाइट्रिक एसिड हमारे पास क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो एज सुन एज द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इन द रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी बिटवीन एक मेटल और आप क्या कहोगे, डाइल्यूट HNO3, मेटल और डाइल्यूट HNO3 के रिएक्ट होते जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, देन व्हाट हैपन, इस नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज दिस हाइड्रोजन टू, इस हाइड्रोजन को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में। सो लेट मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको ईजीएस्ट तरीके में, इसको रब कर देती हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, सो when a metal react with dilute nitric acid, hydrogen gas is not evolve. ओके हाइड्रोजन गैस लास्ट में इवॉल्व होती है ना रिएक्शन में, बट यहाँ पे क्या है,
it oxidize the hydrogen produced to water. सो इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही. इट कौन है यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड क्या करेगी बेटा? ऑक्सीडाइज. इट यहाँ पे कौन है? HNO3. सो वाई दिस हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व? अगर ये रीज़न पूछ ले, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और HNO3 क्या करेगी? ऑक्सीडाइज. जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, सो HNO3 जो क्या करेगी? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देगी इस हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगी, टू वाटर और इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड. और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगी? नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड में. N2O, NO, NO2 इस तरीके से. बट जो मेटल इसके साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं वो केवल 2 मेटल्स हैं. एक है मैग्नीशियम एंड दूसरा है मैग्नीज. ओके. सो Mn and Mg are the very 2 metals which react with very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. केवल ये दोनों ही रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. बाकी HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होती. अगर पूछ ले सपोज सोडियम या कोई भी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, किसी का भी पूछ ले, राइट द रिएक्शन, तो व्हाट यू विल राइट? नो रिएक्शन. क्यों नो रिएक्शन कहोगे? तो आप ये रीज़न दे देना. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HNO3 ऑक्सीडाइज कर देती है हाइड्रोजन प्रोड्यूस जो होती है उसको वाटर में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर. समझ आया? अब हम ये 2 रिएक्शंस लिख लेते हैं जो मैग्नीशियम और मैग्नीज की दे रखी है, जो बुक में नहीं दे रखी बेटा. लेट वी विल राइट हियर. So we will write here magnesium. See, magnesium react with HNO3. So क्या बनेगा प्रोडक्ट? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन गैस. और इसी तरीके से अगर मैं आपको मैग्नीज का और बताऊं, Mn, एक मिनट सही नहीं चल रहा. सो Mn प्लस HNO3. सो व्हाट इट विल प्रोड्यूस बेटा? MnNO3. ये क्या प्रोडक्ट बनाया है? Mn प्लस NO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस. सो MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस. सेम MgNO3 का होल ट्वाइस हाइड्रोजन गैस. सो ये दोनों की रिएक्शन हो गई एसिड के साथ, बट वहाँ पे उनकी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. अब देखो बेटा एक और. नाउ सी यू मस्ट ऑब्जर्व द एक्टिविटी 3.1. मैंने आपको एक एक्टिविटी बता दी थी, वही एक्टिविटी आपके पीछे बुक में दे रखी है. ओके. सो ये बताए थे ना 5 टेस्ट ट्यूब 1 2 3 4 5 टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl एसिड लिए एंड मेटल्स लिए. नाउ यू विल सी we have seen the rate of formation of bubbles was fastest in case of magnesium. So the reaction was also most exothermic in this case. तो हीट भी इवॉल्व यहीं ज़्यादा हुई थी. तो हीट हमें इवॉल्व कैसे पता चली स्टूडेंट? क्योंकि हमने इसके अंदर थर्मामीटर भी रख रखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन हुई और सबसे ज़्यादा एक्जोथर्मिक थी. तो इस तरीके से ये है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे. सो इन केस ऑफ कॉपर नो बबल वेर सीन. So temperature also remain unchanged. So what did this shows? Not react with dilute HCl के साथ रिएक्ट नहीं किया. अब देखो एक्वा रिजिया यहाँ पे दे रखा है, ये एक लैटिन नेम है. ओके. जो गोल्ड है ना बेटा, गोल्ड कभी भी वाटर के अंदर भी कोई डिज़ोल्व नहीं करता गोल्ड. ओके. एंड यू कैन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. बट ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये रिएक्ट करता है एक सॉल्यूशन, एक सब्सटेंस, आप ये कह दो एक्वा रिजिया. ठीक है. सो लैटिन फॉर रॉयल वाटर, इसको हम रॉयल वाटर बोल सकते हैं. एक्चुअल में ये क्या होता है? एक मिक्सचर प्रिपेयर किया गया था. अगर उस जैसे आपने देखा होगा कई बार गांव में सोने को कहते हैं कि सोना साफ़ करवा लो, धुलवा लो, चमक जाएगा. तो एक्चुअल में क्या होता है वो बेटा,
एक तरीके का मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड क्या है, नाइट्रिक एसिड। इन दो सब्सटेंस का मिक्सचर बनाते हैं और इन मिक्सचर का रेशियो क्या होता है, 3:1। 3 पार्ट हमने HCl लिया है और 1 पार्ट हमने क्या लिया है, HNO3। तो 3 हिस्सों में मीन 75% ये और 25% ये। तो इस तरीके से 100% की मिक्सचर बन जाती है और इसके अंदर आप डालोगे तो व्हाट विल हैपन, गोल्ड रिएक्ट कर जाएगा। सो गोल्ड एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो यहाँ पे इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और या मतलब इसके साथ यहाँ पे, बट अकेले अगर एलोन गोल्ड को आप इसके अंदर डाल दो देन ऑल्सो नो रिएक्शन, HNO3 के डालो नो रिएक्शन। बट व्हेन वी विल टेक इन 3:1 बोथ द मिक्सचर देन aquariza is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर लेता है। सो वो इस रेशियो, अगर इस मिक्सचर में कोई भी गोल्ड आप डालोगे तो उसकी धीरे धीरे हर लेयर पतली पतली लेयर होके इसके अंदर डिज़ोल्व होती रहेगी। और उसका गोल्ड का जो वेट अगर आप देखोगे ना बेटा, थोड़ी देर के बाद आप सुनार के गोल्ड स्मिथ से आप उसका वेट मेज़र करा लोगे, आप देखोगे कि उसका वेट क्या हो गया, स्लाइटली रिड्यूस हो गया। दिस इज़ बिकॉज गोल्ड लेयर इज डिसॉल्व इन दिस मिक्सचर। It is clear. In the next topic we will do the next one. Now I will tell the answer of the previous topic and next questions also, so be ready for it. So students, I have asked 2 question. One is which is among the following, जो दे रखे थे metals उसमें से कौन से ज़्यादा reactive था. So the answer was sodium. In that answer was sodium. And one more question, which metal start floating of the following? That answer was calcium. Now I am announcing the name. Those who have give the correct answer. First is beta, the name of the student is Mayank. First is Mayank. Then second you can say, given the correct response is Mehak. Third is Nishant. Fourth beta you can say Ravika. Fifth Rishika. Sixth Manish. So all these students have given the correct response. So Mayank, Mehak, Nishant, Ravika, Rishika, Manish. So next, today's question is, which metal not react with, which metal, today I will ask one question, which metal not react with hydrochloric acid. So first option A, aluminium, B, magnesium, C, zinc, and D, that is copper. So aluminium, magnesium, zinc, copper, among these 4 में से which metal not react with hydrochloric acid? Okay, this is only the single question today I have asked. So give your response in my comment box, student. So thanks for watching the videos, and students, watch it carefully and write the reaction with side by side. When I am writing, you also start writing the reaction, then only you will able to means without forgetting you able to write the reaction. Thank you for watching these videos.